Coming back to the question, so you're saying you're right actually. Lots of great chemistry on screen is between married people. But what happens when it then goes off camera and फिर भी लोग ship कर रहे हैं? Does that ever become like uncomfortable for you in your personal life or? It only gets uncomfortable if you let it. Because elephant in the room is के लोगों ने आप लोगों की शादी तक करा दी थी. उन्होंने कहा ये तो बस ये अब दोनों जो है ना ये ऑफ सीन है, ऑफ द ग्रिड है, अब ये तो चले गए हैं, अब ये आप देखिएगा, आप लोगों को पता नहीं है. So how did you respond to those rumors? By not responding. By not responding. By not responding. Smartest thing to do, huh? That's the best way to respond. Is like a rumor is a rumor, and with weddings and marriages is like, especially when it's gonna happen, it might be a private affair for anyone, but everybody posts a picture the second it happens. Why would someone prolong not posting a picture or something like that? And I feel like, especially with आजकल की social media and age and with जो हम गुजर रहे हैं, आप double check नहीं करते. Journalism that I see of, especially I think we're very influenced by the Indian journalism a lot. वो कुछ भी लगा देते हैं कोई verification के बगैर और लोग believe कर लेते हैं. तो I think हमारे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये करना चाह रहे हैं. Sane journalism बहुत कम है. But yeah, I feel like at the end of the day, how I take it is by not taking it seriously. Because क्या हो जाएगा जाता कुछ नहीं होगा. नहीं, कुछ नहीं होगा. वही बात है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सिक्योर हैं और आपको पता है कि ये एक दुनिया है जो लोगों ने बनाई है और उसमें वो फैंटेसाइज कर रहे हैं कि ये दो लोग इकट्ठे हैं. ठीक है. I always feel like and that's something that I decided from day one entering this industry, and that's something my father taught me, was always keep your personal life personal. And when I say personal life personal, I don't mean कि you have to keep it secretive or छुप के कुछ. But एक होता है secret रखना, एक होता है private रखना. There's a difference in that. And that's how I've always tried to take my life ahead, especially with this career that I am in right now, that I feel like my personal life and my private affairs or whatever I do, my business is going to stay my business as long as I let it be my business. If I put it out there, obviously people will talk. Obviously, and I don't question that idea of people talking about you, of people making rumors about you, because that's part and parcel of the field we are in. So yeah, I just take it very lightly into this, that it's still my private life and you only know what I have told you. And you don't know what So you can conjure up any thought. No, I love that. I love what you're saying about secretive or private में फर्क है. बिल्कुल सही. And whatever you put out is open to conversation. And it should be. And you should not question. कि मैं ये बात हमेशा लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आपने कोई चीज या बात पब्लिकली लगाई है और उसके बारे में बात हो रही है, तो आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज को? या तो आप उस चीज को इतना प्राइवेट रखेंगे किसी को कुछ ना पता हो. लेकिन अगर आपने पब्लिकली लगा दी है, पोस्ट लगा दी है, कुछ कर दी है, लोगों को हिंट्स दे रहे हैं आप, तो फिर जस्ट let it be. Do you think artists today and stars especially are under a lot of pressure कि लगाएं कुछ ना कुछ, बताएं, अच्छा मंगनी हुई है क्यों नहीं बताएं, या इवन खुदा ना करे जब डिवोर्सेस होती हैं बताएं, इन्फॉर्म करें, बताएं, या कुछ अगर होता है कमेंट करें, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन दें, आपने ये क्यों नहीं पोस्ट किया. Do you feel that वो भी तो आजकल बहुत है. 100%, I agree. And this just started, I feel, 5-6 years ago. It wasn't that the pressure was not very evident before that, I feel. But ये सब के बावजूद, I feel like it's who you are as a person that will always reflect upon your Instagram also. And that's how it should be. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा बात हो रही है ना. तो आप जो इंसान हैं, अगर आप वही रिफ्लेक्ट करें उस पे, तो बेहतरीन है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, when you meet someone in person, it should literally be reflective of who they are on Instagram. Otherwise, they're literally faking it, and आपको पता चल जाता है. और बहुत आसान है पता करना. मतलब आप 1-2 मीटिंग्स करें किसी से और फिर आपको भाई पता चल जाता क्या हो रहा है क्या नहीं. तो बहुत स्क्रूटनी है. और इस चीज का मुझे ये लगता है, how I handle it is that I am very private with also posting about it. So I like posting my vacation pictures, or I like posting
वन डे और टू क्या हो रहा है क्या नहीं, बट मैं उस मोमेंट को हमेशा पहले एंजॉय करती हूँ। मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैंने आज तस्वीरें लेनी है, बल्कि कल ही ये बात सोच रही थी मैं बताती हूँ कि रोशन कॉल्ड मी एंड रोशन वेंट लाइक, listen, you're not posting for 20 days, people are meeting me in places and questioning me, where is she, गायब क्या हो गया, सब ठीक तो है। I'm like, the idea that, and I understand कि हमारे मुल्क हालात कैसे हैं कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया अगर पोस्ट नहीं कर रहे, but the idea is that there is a pressure that you have to constantly post and be updated, you know, and I'm not quite well synced with that, because मैंने हमेशा उस मोमेंट को enjoy किया और मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ये तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए। हाँ, मेरे दोस्तों को अब पता चल गया है तो वो रैंडमली मेरी तस्वीरें ले लेते हैं और मैं लगा लेती हूँ। लेकिन रोम की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं। है ना? वो मेरी एक वो दोस्त है जिसको तस्वीरें लेना बिल्कुल नहीं आती, बट नहीं आती, मैंने कहा उसको आती है, हर जगह उसको साथ ले जाना चाहिए। उसने बहुत अच्छी ली है। आई वाज शॉक्ड आफ्टर दैट बिकॉज़ व्हेन आई वाज गोइंग आई वाज लाइक, लिसन, इस ट्रिप पे पिक्चर्स तो नहीं आने वाली और कोई वो सीन ही नहीं है, बिकॉज मैं कभी अपनी तस्वीरें नहीं लेती। मेरी बहन ने मुझे एक स्टिक ऑन चीजें दी हुई है, वो मैं किसी चीज पे लगा लेती हूँ और यू नो एक वीडियो रिकॉर्ड करके मामा को या किसी को बाबा को अपडेट कर देती हूँ, बट मुझे शौक नहीं है ज्यादा तस्वीरें लेने का। मेरी कोई ले तो ठीक है और मैं लगा देती हूँ, या कोई पेड शूट हो तो वो मैं लगा देती हूँ, बट इट विल नेवर बी लाइक आई लाइक ओ कम ऑन आज तस्वीरें लेते हैं। आई विल नेवर वेक अप एंड बी लाइक आज का दिन हमने तस्वीरें, आज हमने कंटेंट बनाना है। हाँ, नहीं, मुझसे नहीं होता और ये बड़ी हिम्मत है उनकी जिनसे होता है, बट मैं मेरा कंटेंट नेचुरली आ जाए और वो लग जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, that's how absolutely I feel. Going back to Ishq Murshid for a moment, हमने obviously बहुत intensity के साथ रिव्यू किया हर एपिसोड का, हर सीन, ये वो, enjoyed it incredibly. I mean, कहीं कहीं लेकिन जो स्क्रिप्ट थी और प्लॉट था वो स्कैटर होना शुरू हो गया था विद टाइम, एंड ऑफ कोर्स हमारी बात ना हुई ना, यू डिडंट गिव एनी इंटरव्यूज, नाइदर डिड बिलाल, सो वी कुडंट रियली नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट थोड़ा सा लग रहा था जैसे कि चॉपी हो गया है। तो क्या बदला गया था स्क्रिप्ट, या वाज इट द सेम स्क्रिप्ट दैट यू स्टार्टेड विद, या वो एक इश्क मुर्शिद की दुनिया का जादू बन गया था जिसमें सब खो गए? एक सवाल, यू थिंक अबाउट इट। और दूसरा ये कि जो मैंने और हसन ने बहुत कहा कि जो शिब्रा का कैरेक्टर था, जो बड़ा पहले सीन में था कि मैं सच्चाई का और मैं हर चीज़ प्रॉपर, झूठ से नफरत, एंड यू नो वेरी राइचियस एंड एवरीथिंग, और ये लड़का उससे झूठ बोलता रहा है पूरी जिंदगी। Was that a forgivable thing for her? And you know, I always wanted to know what your thoughts were about this. So पहली बात, answering your first question, that I can sit here and talk about things because obviously I have a lot of insight. I was part of it, but I would choose not to for reasons like I feel like behind the scenes बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं लगता आपको publicly बतानी चाहिए और कहनी चाहिए। इश्क मुर्शिद जो भी बना, जितना ग्लोबल सेंसेशन बना, उसका अगर क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो वो दादा को जाना चाहिए। आई वुड ऑलवेज से दैट। स्क्रिप्ट में ऑल्टरेशन हुई नहीं हुई, उस टाइम के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि बेहतर